आप खड़े रहेंगे तो मैं भी खड़े रहूंगी. I'm really good, you can say. No, it'll be very I just have to slow. ask you one more question and I'm good to go. Okay, I'll stand till you're standing and then I'll sit. Please. Yeah, so we were up there as Mr. Mahi. मिस्टर माही को एक्चुअली हम बनारस में थे, वाराणसी में थे और वहाँ हमने फिल्म की प्रमोशन की और वो वहाँ एक्चुअली एक दूसरी फिल्म की शूट भी कर रहे हैं. तो अब उनका आना जाना होगा प्रमोशंस में, जो भी सिटीज़ में जा रही वो कोशिश ज़रूर करेंगे क्योंकि वो वहाँ यहाँ रहना. इनफैक्ट वो कल इतने सैड हो गए थे, कह रहे थे कि एक अच्छी फिल्म को प्रमोट करने का मज़ा ही अलग है, ये जो जोश आप अंदर से महसूस करते हो. सो ही रियली Excited about it, yeah. We heard आपने कल, in fact मैंने तो reel भी देखा which is going viral. You were in Varanasi for promoting your movie. So how was your experience, doing Ganga Aarti and having that pan? We all just loved it. इट वॉज ब्यूटिफुल एक्चुअली. मेरा ये मानना है कि बहुत ही शुभ नोट पर हमारा प्रमोशन टूर शुरू हुआ है. बहुत टाइम से, आई थिंक बचपन से वाराणसी से एक अलग टाइप का फैसिनेशन था. इतनी ऐतिहासिक जगह है, इतना कल्चर है, वहाँ की ऊर्जा इतनी खूबसूरत है. तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमने हमारी फिल्म की प्रमोशन वहाँ से शुरू की, गंगा That's what my आरती से. next question was, but I think I already got the answer that you started your promotions with Varanasi. So what was the particular reason about it? And I think we are good to go. I mean, honestly, the reason was because Raj वहाँ shoot कर रहे थे, but I think there was a divine plan because we couldn't have asked for a better way to start promotions with the Ganga Aarti. I think it really set us off on the right note. Alright, everybody, I think we're good to go and let's start with the Q&A session. The media has been very, very excited to be asking you questions and I'm sure they're all prepared. But you guys, just one thing, I would request you all to kindly stick to the film and before asking questions, please raise your hands. Thank you. Thank you, Janvi. I'm Divya from ANI. Nice to meet you. नहीं रहने दीजिए, लोग imagine करेंगे कि राज बैठा है इस कुर्सी. For Mr. and Mrs. Mai, first of all. Thank you. And my question is that you said that you had to go a rigorous strength training for this role. So I want to ask you, can you please elaborate? Was there any specific diet plan or any workout regimen that you have to follow? And was there Radiant or glowing very much when I was shooting this film. की थी preparation जब शुरू की थी, मैं उस वक्त आई थिंक गुड लक जेरी को प्रमोट कर रही थी, बवाल शूट कर रही थी, या नहीं मिली के आसपास के टाइम का था. एंड आई वॉज अबाउट 8-9 kilos heavier and Sharan was very stressed because he kept saying you don't look like a cricketer, and if you really want to do this film you need to start losing weight, you need to start training in cricket. तो मेरा डेली रूटीन ऐसे ही था. एट द पीक ऑफ माई ट्रेनिंग मेरे जो कोच थे अभिषेक नायर, वो कह रहे थे कि जिस तरह की ट्रेनिंग आपके साथ की गई है हमारे IPL प्लेयर्स के साथ भी नहीं की जाती, उतना इंटेंस था. सो आई यूज्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग, आई यूज्ड टू गो टू नियर ahead of Powai there's a space called Bhandu. I used to practice in the nets with some of his KKR players who he just recently recruited. तो 2 घंटे वहाँ नेट प्रैक्टिस होती थी, फिर मैं बांद्रा आती थी, वहाँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता था, कंडीशनिंग होता था, कार्डियो होता था. तो ये तकरीबन 1 घंटे तक चलता था. फिर मैं मीटिंग्स करती थी, अगर कोई शूट होता था तो मैं शूट के लिए जाती थी. फिर पैकअप के बाद मैं वापस बांद्रा के किसी ग्राउंड में 2 घंटे और प्रैक्टिस करती थी. तो yeah, it was at least 5-6 hours of physical training every day. I was following a very low carb diet, and I was shooting simultaneously for other things and my other director. The physical prep takes a toll mentally, especially when you're juggling a million other things with it. I think every time I realized how much cricket meant to my director and the vision that he had, I felt an immense amount of pressure to deliver. And yeah, juggling my other roles and still trying to look a certain way while keeping up with the prep was quite intense. And more than that, I don't know if I've said this before, I think I have, but even the character of Mahima that I'm playing, while Sharan was writing the film, we were interacting quite a bit, so a lot of it was, I wouldn't say borrowed, but very closely related to a phase in my life.
And then when we got to shooting the film, I had gotten over that phase and become a very different person. So it was weird for me emotionally to look back at the girl that I was and try to relate to her and play her and understand her and sympathize with her, because you end up judging the character so much and you end up judging the person that you were so much. So I guess that was the emotional toll. हाय जानवी, आई एम कनक फ्रॉम केएम हिंदी न्यूज़। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जब इस फिल्म को कर रहे थे तो राजकुमार राव के साथ आपका फिल्म करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और कोई एक 5 मिनट का जो आपको आपका लाइफ टाइम वो पीरियड की मुझे एक पार्ट याद रहेगा हमेशा राजकुमार के साथ काम करने का। ये हमारी दूसरी फिल्म है साथ में। पहली फिल्म हमने की थी रूही, और उस फिल्म के दौरान हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा, और हम एक दूसरे को क्योंकि मैं एक भूतनी थी उस फिल्म में, तो मैं बस आवाज़ें निकाल रही थी और वो बस डर रहे थे मेरे से। और हम बातचीत करते रहे उस सेट पर भी कि काश हमें मौका मिले कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे बड़े बड़े ड्रामे वाले सीन्स करें, झगड़े करें, रोमांस करें, कॉमेडी करें। तो वो पूरा खुन्नस हमने मिस्टर एंड मिसेस माही में निकाल दिया, एंड इट वॉज ग्रेट। आई डोंट थिंक आई कुड हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर पार्टनर ऑन दिस जर्नी। हमने यहाँ लिखा है इम्परफेक्टली परफेक्ट पार्टनरशिप, लेकिन मेरा ये मानना है कि मी एंड राज टुगेदर वो द परफेक्टली परफेक्ट पार्टनरशिप। वो जिस तरह से सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हर कास्ट मेंबर, हर टेक्नीशियन को सेट पे सपोर्ट करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, और वो इतना मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं अपने कला से, फिल्म मेकिंग से, कि सबको उनको देख के दे यूज्ड टू फील एनर्जाइज कि नहीं हमें भी हमारा बेस्ट देना है। सो या हाय जानवी। हाय। जानवी, जितेंद्र शर्मा फ्रॉम दैनिक भास्कर। जानवी, पूछना चाहता हूँ कि आज दिल्ली में आपकी एंट्री ने पहले तो तापमान बढ़ा दिया है आपकी इस हॉट लोकेशन में, और भारतीय परंपरागत इस साड़ी में तो आप वाकई कमाल लग रही है। थैंक यू। अब आते हैं प्रश्न की ओर। जानवी, आपने माही एंड मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म की, तो ये फिल्म क्या मैसेज देना चाहती है समाज के अंदर, आपको क्या लगता है? बहुत सारे मैसेजेस हैं। इनफैक्ट मैंने और राज ने, हम स्क्रिप्ट सुनते ही फिल्म पर इस तरह ऐसे कूद गए, क्योंकि ये फिल्म के जो उसूल है, जो ये फिल्म कहना चाह रही है, वो हमारे उसूलों से इतनी मिलती जुलती है। जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, ये फिल्म है सिर्फ क्रिकेट के बारे में तो बिल्कुल नहीं है। ये फिल्म है सपनों के बारे में, सबसे ज़्यादा सपनों के बारे में है। इतनी बार होता है लाइफ में कि क्या रोज़ क्रिकेट पे पहन के आ जाती हूँ। काफ़ी ये बहुत अच्छी लग रही है साड़ी आप पे। ये फिल्म एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी थोड़ा सा है कि स्टार्टिंग में बोलते हैं कि आपकी मैं मतलब इंसान से बात करना बंद कर लूँ अगर हमारा ज़ोडिएक साइन मैच ना हो, ये सब नहीं करती हूँ। Hi Janvi ma'am, this is Khushi. So I miss my sister. thank you so much. So ma'am, could you please share with us the most challenging aspect of portraying Mahima's journey from a doctor to a cricketer? The most challenging aspect, I think, to understand the frame of mind of someone who, because doctor बनना आसान तो नहीं होता है. There's so many years of education and hard work that go into. You need to commit yourself to that lifestyle. ऐसे नहीं कि ऊपर से हाँ मैं बस कुछ छोटा मोटा कर रही हूँ. It's a full-on commitment. So to understand how Mahima, as a girl who's committed so many years and hours to becoming a doctor, decides to give that up, what makes her do that, how important cricket was to her beforehand for her to make that switch. I think understanding that was very important for me. And yeah, as far as the cricket part goes, I think definitely, for me personally, shooting through the injuries was very difficult. Last question. हाय जानवी फ्रॉम एएमबी नेटवर्क। मैम, मैंने जैसे देखा है कि आपकी इस फिल्म में जो क्रिकेट बेस पर है, आपका इंडियन क्रिकेट टीम में फेवरेट प्लेयर कौन सा है और क्यों? धोनी। धोनी। और मुझे रीजन देने की जरूरत नहीं है, आई थिंक सब लोग समझ जाएंगे. आई थिंक ही इज एवरीवन्स फेवरेट. लास्ट है, लास्ट सवाल. जानवी मैम, हाय, हिमांशु दिस साइड. मैम, लास्ट टाइम गुड लक जैरी की प्रमोशन पे हम आपसे मिले थे, तो आपने बताया था कि मेरा जिंदगी में एक बार जूनियर एनटीआर के साथ काम करने का बड़ा मन है, और आज देर रात हमने जो है फर्स्ट लुक देखा है. तो किस तरीके का किरदार होने वाला है? 2024 से शायद आप ज्वाइन भी करने वाली है, ज्वाइन कर चुकी है, थोड़ा सा आइडिया अगर आप बताएं किस तरीके का मतलब पूरा वो चल रहा है. बहुत मज़ेदार किरदार है, और सबसे ज़्यादा ऑनेस्टली
मुझे मज़ा उस सेट पे आता है क्योंकि जिस प्यार से वो लोग अपने काम को निभाते हैं, करते हैं, जिस पैशन के साथ वो लोग काम करते हैं, और उनकी स्टोरी टेलिंग इतनी खूबसूरत होती है, जो कन्विक्शन के साथ वो लोग हर कहानी को दर्शाते हैं। एक अलग ही मिजाज, जज्बात, तेवर होता है इनकी फिल्मों में, और मैं बहुत अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला है। ओके, फोटो करते हैं उसके थैंक यू। माइक ले लो।